हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईसी बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर जो होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी पर्यावरण क्षरण तथा आपदा प्रबंधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी बच्चों के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अमृत तुल्य रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईसी सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनआईसी सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is most important here, cases of environmental degradation here. And what is the cases of environment degradations here? Based on the discussion so far, we know that the healthy environment is essentially, therefore there are every extensive human society and other living organisms. But environmental degradation is going on the unabated. We are began to the continues with every now as then about their deteriorations in the environment, and it is a consequence like global warming, changing climatic condition, impending water crisis, and decreasing fertility of agriculture land and increasing health problems. In order to be considered, required step to be taken from doing so, it is necessary to understand the cases of environmental degradations here. The important factors are flowing. Let's see the important factors here. First come here social factor. Here social factor is a first point, growing population. The population is the greatest source of any country and a major contributor factor for development, and yet it is a major causes of environmental degradation. As we find, the rapid pace of population growth has led to be excessive utilization of natural resources here, and high population also lead to be protection of the beasts. The resultants is the outcomes are loss of biodiversity, population of air and water and soil has a increasing pressure on the arable land. And all this has been to the putting great stress on environment. If you take the case of India, it is support 7% of the world population in just 2.4% on the world here. You know that there is the most important here. The world populations on just India is a survive only 2.4% of land. This is the most important growing populations here. And also your picture that is important, there is a population rapidly is growth here, and this picture is a show here a rapidly growing of population in India. The next factor here, poverty. The poverty is said to be both the cases and the effect of environment degradation. You maybe have seen that poor people use natural resources more than rich. They use the building, there is a hut for a cooking for their food and meeting any other needs. In this way, they are debated these resources faster and have no opportunity to be
or gaining access to the other types of resources that are here. But you see here diagram, there is a poverty in India. Generally, that is primarily exported by their rich person. As we now that more than resources are utilized, there are more degradation the environment becomes, and the more of environmental deteriorate, and there are more impoverished to poor will be here. This is important. The next point here is urbanizations. Urbanizations is the most important. You may have absorbed a large number of poor people from a village and moving to town. Observe there are a large number of poor people from village moving to town, cities and the mega cities to be earn their livelihood. And this has led to be unplanned and the rapid expansion of cities, creating enormous of pressure on the infrastructure facilities. This is important. The pressure on the infrastructure facility. If you live in the city, you may be experiencing this pressure on the housing, the water and electricity supply, and the sewage. You would be aware of the growing slums. Urban slums are major resources of population and suffer from the worst kind of the unhygienic condition. The fast pace of urbanization has also been responsible for the depletion of the forest and recreational use of other resources here. You know that show in this picture there is a urbanization, the most important picture on your screen. There is a more development here show in this diagram. The next point here, changing lifestyle. There has been a remarkable change in the style of living of people. The changing is visible not only among the people living in the cities and the town, but also among those who live in the villages. The changing lifestyle of peoples has requires increasing their a level of consumptions. Consumptions and it is has also is resulting in the increasing of human activities that causing serious damage to the environment in the many way here. It has a contribute to the air, water, sound, vehicles and industrial pollution. The fly out of their fast increasing use of modern gadgets like refrigerators and air conditioner in their release of harmful gases in their atmosphere. And this has been to the causing global warming, which is a very dangerous. There is global warming is very dangerous for people, and in fact, due to the overuse of modern gadget, the modern gadget to harmful gas like carbon monoxide and carbon dioxide are released which then lead to global warming. You know that on your screen there is a most important factor here or causing of here global warming. There is a refrigerators and AC. Refrigerator and AC mostly harmful gas on our atmosphere. You know that there is a most important point here. The refrigerators and the AC, the degradation of harmfully gas for a environment is causing a global warming here. Next factor here, economical factor. Economical factor is the most important here. Agriculture development. There is a next point. Regarding to the economical factor, first point here, agriculture development. Agriculture development is so important for a country like our, but this has been to affecting the environment advisory here and various kind of farming activities, especially directly toward the increasing agriculture production, has have a directly impact on environment. And this activity has been to the contributing to soil erosion, land siltations, and accumulation of loss of nutrients. As we have been to the expressing in the India, the green revolution has led to be over exploitations of land and water resources. Extensive use of fertilizer and pesticides has been to a major
resources of contaminations of water, body, and the land degradation. You know that there's an important point here. Extensive use of fertilizer and pesticides, there is a major source of contamination of water bodies and land degradation. You know that you show in this picture, there is a most important here, the reason of land degradations on your screen here. The next point here, industrialization. Rapidly industrialization has been to the foremost contributor to environmental degradations here. The based on the information collected through the various sources, we find that most of the industry adopt their technologies that place a heavy load on the environment, and these technologies lead to be intensive use of resources and energy. The current pace of industrialization, therefore, is resulting in the depletion of natural resources like fossil fuel, minerals, and timber, and contamination of water, air, and land. All these are causing immense of damage to the ecosystem and leading to the health hazard. You know that on your screen there is industrialization and industry pollution, and is causing for there many types of diseases here. The next point here, economical development. It is a fact that the pattern of economical development has also been creating environmental problems here. The place of economical development has been to putting immense to the pressure on the resources. The economic today has become a consumption of the intensive, which is a demand, a great use of resources and promote to lifestyle that lead to the wastage. The irritation use of resources and wastage are resulting in depletion of the environment. This is the most important point here. आगे जो हमारे समक्ष आया है पर्यावरणीय संरक्षण के कारण। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के कारण बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण को अगर हम संरक्षित नहीं रखें तो आने वाला समय में हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। देखा जाए तो पर्यावरण क्षरण के कारण कई हो सकते हैं। अब तक की चर्चा के आधार पर हम जानते हैं कि स्वास्थ्य, वातावरण, मानव समाज और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन पर्यावरण का क्षरण जो है मेरे कटोक्स होता जा रहा है। यानी देखा जाए तो पर्यावरण का क्षरण जो है बेरोक हो रहा है, यानी इसमें कोई तरह का जो है ब्रेक नहीं लग रही है। सरकार सिर्फ नए टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, लेकिन जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसके पीछे कहीं कोई कदम नहीं उठाई जा रही है। हमें समय समय पर जो है पर्यावरण के अनियमित और गिरावट और उसके जो है दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है, जैसे वैश्विक तापमान का बढ़ जाना, जलवायु परिवर्तन, अचानक जल संकट, कृषि भूमि की घटती उर्वरकता और बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या के प्रति समाधान किया जा रहा है। यानी देखा जाए तो नेचर ने भी हमें अलर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी इंसान की गतिविधियां जो है प्राकृतिक नष्ट करने के अंतर्गत ख़त्म नहीं हो रही है। तो आने वाला समय में इसका जो है काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है, और ये हमें देखने को मिलता भी है। आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में कहते हैं वो सब चीज़ें पहली बार हो रही है जो होना नहीं चाहिए, और इससे मानव को जो है बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण क्षरण के कारण ही हुआ है, और सभी संभवतः प्रयास करके पर्यावरणीय क्षरणों को रोकने की तुरंत आवश्यकता है। अगर हम तुरंत इसको नहीं रोकें तो हमारा जीवन कुछ इसी प्रकार से बन जाएगा। ऐसा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने और विचार करने से पहले आवश्यक है कि हम पर्यावरण क्षरण के कारण समझें कि आखिर जो पर्यावरण के क्षरण हो रहे हैं, जो ये नष्ट हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं, और इसका जो है सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक के बाद एक जो है हम इसके पर्यावरण क्षरण के कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जानें। सबसे पहला कारक हमारे समक्ष जो आता है वह है सामाजिक कारक के अंतर्गत। सामाजिक कारक के अंतर्गत बढ़ती जनसंख्या। देखिए, भारत की जनसंख्या देखा जाए तो आज काफ़ी है, कहते हैं 140 के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। चाइना की भी जनसंख्या इतनी है, चीन का, और भारत की भी जनसंख्या इतनी है। लेकिन चीन की बात करें तो उनके पास भूमि का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, और हमारे पास सिर्फ 2.4 है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को इतनी कम क्षेत्रों पे जो है पालन पोषण करना
बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात है कि जनसंख्या को रोकें। अब जनसंख्या रुकेगी कैसे? जब लोग समझदार पढ़े लिखे बनेंगे और जब बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं करेंगे तो जनरल सी बात है जनसंख्या जो है कंट्रोल में आ जाएगी। तो देखा जाए बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी कारण बनती है। बढ़ती जनसंख्या किसी देश का सबसे बड़ा साधन होती है और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला भी है, लेकिन इसके बावजूद यह पर्यावरण क्षरण का सबसे बड़ा कारण बनती है। देखिए, कोई भी देश के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ा संसाधन है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए जो है बहुत विनाशकारी ही है। जनरल सी बात है, पर्यावरण नहीं रहेगी तो इंसान का क्या अस्तित्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति के प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन हो रहा है। जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से जो है प्राकृतिक संसाधन का भी दोहन हो रहा है और विशाल जनसंख्या विशाल कचरे का उत्पादन करती है और इसके परिणाम स्वरूप ध्वनि, वायु, जल और मिट्टी की प्रदूषण और कृषि योग्य भूमि पर विविध प्रकार के जो है दबाव आज के समय बढ़ती ही चली जा रही है और ये सभी पर्यावरण पर बहुत अधिक दबाव डाल रहा है, जिससे पर्यावरण दबती ही चली जा रही है। यदि आप भारत का उदाहरण लें तो यह विश्व में कुल भूमि क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% ही है और विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भाग का जो है भारत ही जो है भरण पोषण करता है। तो ये दुर्दैव परिस्थिति कि भारत के पास सिर्फ 2.4% ही भूमि क्षेत्र है और देखा जाए तो 17% जनसंख्या का भरण पोषण भारत में ही हो रहा है। तो जनरल सी बात है कि भारत में जनसंख्या जो है सबसे बड़ा कारण बनता है प्राकृतिक डिग्रेडेशन के होने के कारण। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गरीबी। गरीबी पर्यावरण का क्षरण का भी कारण हो सकता है और परिणाम भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि गरीब लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। वो अपनी झोपड़ियों के निर्माण, खाना पकाने के लिए, अपने भोजन के लिए और कई अन्य जरूरतों पूरा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न उठाना चाहूँगा कि गरीबों को यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण को नष्ट करने में गरीबों का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन शायद आज आधुनिक युग है और यहाँ पर गरीबों ने पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो लिखा गया है कि अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधन का अधिक उपयोग करते हैं, यानी गरीब सबसे अधिक करते हैं प्राकृतिक संसाधन का। आपको बता दूं कि इतने हज़ारों सालों से जो है लोग प्राकृतिक संसाधन का ही उपयोग कर रहे थे और आज तक पर्यावरण में जो है अनबैलेंस नहीं हुआ। लेकिन आज क्या कारण है कि अनबैलेंस हो गया? क्या गरीबों ने पेड़ काटा, खाना बनाने के लिए 2 लकड़ियाँ इकट्ठा किया तो इसके कारण जो है डिग्रेडेशन हुआ? कदाचित नहीं। आज जो ये पर्यावरण डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण बना है तो गरीब इसका कारण नहीं है। इसका कारण अमीर लोग हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्री के जो है मालिक हैं और पेड़ पौधों को ऐसे कटवा रहे हैं जैसे कि उनके लिए कुछ भी पेड़ पौधा नहीं है। और यहाँ पर गरीबों को जो है इल्ज़ाम देना, गरीबों पे जो है इसका ठिकरा डालना, ये कहीं हद तक सही नहीं है। समय बदल चुका है। समय आज जो है गरीब बेशकली जो है जंगलों से 2 लकड़ियाँ नीचे गिरा हुआ उठा लेते हैं, लेकिन वो इतने अधिक अमाउंट में जो है पेड़ को नहीं काटते हैं जितने अमाउंट में जो है अमीर लोग अपनी सुविधाओं के लिए काटते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बेशकली गरीबों ने जो झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियों का उपयोग किया है, खाना पकाने के लिए किया है, लेकिन इससे जो है प्राकृतिक इतनी जो है पेड़ पौधे का इतना अधिक उपयोग नहीं हुआ है जितना जो है अमीर लोगों ने लालच में आकर पेड़ को जो है धराशायी किया है। इस तरह से जो है लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेज़ी से कर रहे हैं। यानी यहाँ पर बात गलत है कि अमीर लोगों की अपेक्षा यानी जो है गरीब लोगों की अपेक्षा जो है अमीर लोगों की अपेक्षा जो है गरीब लोग अधिक दोहन कर रहे हैं, जो गलत है। यहाँ पर जो है अमीर लोग ही जो है पेड़ पौधों को काट रहे हैं। अमीर लोग अन्य साधन का उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं संसाधनों का अधिक उपयोग पर्यावरण का अधिक क्षरण करता है। पर्यावरण में जितनी गिरावट आ रही है गरीब उतना ही अधिक गरीब होता जा रहा है। अब ये बात कहाँ तक उचित है आप स्वयं ही सोचिए, क्योंकि पर्यावरण में जितनी गिरावट आ रही है गरीब उतनी ही अधिक गरीब होते जा रहे हैं। ये बात शब्द जो है सही नहीं है। कहते हैं भारत में अगर गरीब गरीब हो रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है अमीर लोग ही हैं।
आज जितने भी संसाधन हैं सब अमीरों तक ही सीमित है। गरीबों के लिए आज कुछ भी नहीं है। गरीब तो सिर्फ 2 रोटी कमाना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं। और गरीबों से अमीर लोग जो है पेड़ पौधे कटवाते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। तो यहाँ पर गरीबों को जो दोषी देना सही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण अमीर लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो पेड़ पौधों को जो है धराशायी कर रहे हैं, जो गलत है यहाँ पर। और इससे सबसे बड़ा कारण पर्यावरण के जो है नष्ट होने का कारण बनता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है नगरीकरण। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग जो है जीविका की तलाश में गांव और कस्बों से शहरों और महानगरों की ओर जा रहे हैं। इस तरह तेज़ी से जो है अनियमित विस्तार हुआ है और मूलभूत सुविधाओं पर अत्यंत दबाव पड़ा है। चलो ये बात सही है कहीं हद तक, क्योंकि गरीब लोगों को जो है अपने क्षेत्रों में जो है जीविका नहीं मिलता है, तो ये नगरों और शहरों की तरफ जो है रुख जरूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो हैं शहरों में जाकर अपना घर बसाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पर घर बनाते हैं। और वहाँ के लोग भी जो है पैसों की आड़ में जो है ज़मीनों को बेचते हैं और इन लोगों को देते हैं सुविधाएँ। तो इससे भी जो है नगरीकरण के कारण भी जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक दोहन का कारण बनता है। यदि आप शहर में रहते हैं तो आपने पानी, आवास और बिजली की आपूर्ति और सीवेज पर इस दबाव का अनुभव किया होगा कि ये सारे कुछ जो है पड़ता है प्रभाव। आपको बढ़ती हुई मलिन बस्तियों के बारे में भी पता होगा, जो कि आपको शहरों में ही देखने को मिलता होगा, जहाँ पर आम गरीब बंदे जो है अपना घर झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं। शहरी मलिन बस्तियाँ प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं और निम्न सड़क की जो है स्वच्छ दशाओं गिरी हुई है। शहर की तेज़ गति से जंगलों को काटने और अन्य साधनों के विवेकहीन इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार है। तो बात यही है कि शहरों में जितने लोगों की संख्या बढ़ रही, शहरीकरण हो रहा है, उतना ही पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं दोषी जो है सरकार ही है कि सरकार जो है गाँव में, ठीक है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते हैं और ये लोग को वहाँ पर नहीं रुकने पे मजबूर करती हैं। आप कहते हैं लोगों के पास जीविका नहीं रहेगी, दो वक्त की और जो है मेहनत नहीं करेंगे, रोटी नहीं कमाएंगे, तो कैसे आगे जो है उनका जीवन यापन होगा। तभी ये लोग जो है अपने गांव कस्बे को छोड़ के शहरों में, नगरों में जो है निवास करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दोषी यही बनता है, सरकार की बनता है कि सरकार जो है इनके लिए मूलभूत आवश्यकताएं जो है गाँव में ही सुविधाएँ दे। तो ये शहर की तरफ कभी पलायन नहीं करेंगे, और शहर की तरफ पलायन नहीं करेंगे तो यहाँ पर नगरीकरण इतना अधिक तेज़ी से नहीं होगा और पेड़ पौधे जो है इतने नष्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात था। उसके पश्चात हमारे समक्ष जीवन शैली में परिवर्तन। देखिए, हमारे जीवन शैली में जितने परिवर्तन आया है, ये भी सबसे बड़ा कारण जो है पर्यावरण डिग्रेडेशन का बन सकता है। कहते हैं लोगों की जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन न केवल शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों में दिखाई देता है, बल्कि गाँव में रहने वाले लोगों में भी आम दिखाई देता है। लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन ने साधनों को उपभोग का स्तर बहुत ही अधिक बढ़ा दिया है और इसके परिणाम स्वरूप मानवीय अनुक्रियाएं बढ़ती चली जा रही है, जिससे पर्यावरण को कई तरह के जो है बहुत नुकसान हो रहा है। उसमें हवा, पानी, ध्वनि, वाहन और औद्योगिक प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। कहते हैं पर्यावरण के सबसे बड़ा दुश्मन जो है रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर की तरह। आधुनिक उपकरणों तेज़ी से बढ़ते उपयोग का नतीजा वातावरण में हानिकारक गैस का मिलना। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एसी और कूलर का उपयोग जितनी बढ़ते जाएगा उतना ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ता जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे हानिकारक गैस है, जो हमारे जो है हानिकारक जो है रिसाव करती है। ये बहुत ही जो वैश्विक तापमान बढ़ाने में सबसे बड़ा उत्तरदायी होती है। आप बेशक एसी में रहते हो, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हो, लेकिन आपने इसकी जो है जिसकी हानियों को नहीं जाना है और इसको खतरा को नहीं भापा है। कहते हैं इससे जो निकलता है गैस है वो बहुत ही खतरनाक होता है जनजीवन के लिए। तो आप ठंडक तो आपको कुछ समय के लिए दे देता है, लेकिन ये जो है विनाश के कगार पे आपको खड़ा कर देता है। और इन्हीं कारणों से जो है देखा जाए तो वैश्विक तापमान भी बढ़ा है, यानी इससे वैश्विक तापमान हो रहा है और बहुत ही खतरनाक है। वास्तव में आधुनिक उपकरणों के तेज़ी से बढ़ते उपयोग भी खतरनाक है। आधुनिक उपकरणों के अधिक उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस का रिसाव होता है, जो वायु में मिलकर जो है वैश्विक तापमान का कारण बनता है। और आज के समय वैश्विक तापमान का कारण मैं साफ तौर पे आप लोग स्वयं ही देख सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही देख सकते हो कि किस प्रकार जो है आजकल जो है वातावरण में चेंजेस देखने को मिल रहा है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्थिक कारण। देखिए, कृषि विकास हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्यावरण का प्रतिकूल असर डालता है। बहुत सी कृषि पद्धतियाँ जो है विशेषकर कृषि उत्पादन बढ़ाने वाला पर्यावरण को सीधे प्रभावित कर रही है, और इन गतिविधियों से जो है मृदा अपरदन, भूमि का अवैधीकरण और क्षारीकरण पोषक तत्वों की कमी भी हो रही है। यानी देखा जाए तो आर्थिक कारण भी सबसे बड़ा जो है इसका कारण बन सकता है, क्योंकि आर्थिक कारण इतने बढ़ते चले जा रहे हैं जिसके कारण जो है देश की हालत बिगड़ रही है। जैसा कि हम भारत में अनुभव कर रहे हैं, हरित क्रांति से जो है भूमि जल साधनों का दोहन बहुत अधिक बढ़ा है, और उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक इस्तेमाल जल निकाय के प्रदूषण और भूमि क्षरण के कारण भी बन रहा है। तो देखिए, आज के समय जर्नली सी बात है, हम विश्व स्तर पर अपने आप को बढ़ाने के होड़ में लगे हुए हैं, और इसके कारण जो है हम पर्यावरण को भूलते ही चले जा रहे हैं, और हम कीटनाशक उर्वरक का इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं जिससे कहते हैं हम पर्यावरण कुछ होती ही नहीं है। तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के कारण जो है पर्यावरण का भी जो है दोहन हो रहा है। उसके पश्चात आता है औद्योगिकरण। कहते हैं पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण तीव्र गति से औद्योगिकरण भी है। आज देखा जाए तो भारत में इतने उद्योग लग गए हैं जिसका कोई यहाँ पर था नहीं है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर हम पाते हैं कि अधिकतम लोग उद्योग ने ऐसी औद्योगिक अपनाई हुई है जिनमें पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है, और आपने देखा भी होगा कि जितने उसमें से केमिकल निकलते हैं सब नदियों और जो है नालों में बहाई जाती है, तो उसके आसपास के जितने पर्यावरण क्षेत्र होते हैं प्रदूषित हो जाते हैं, और पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है पर्यावरण भी नष्ट हो जाते हैं, और इन औद्योगिक संसाधनों और ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग होता है। औद्योगिकरण की जो है वर्तमान गति प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज, लकड़ी घट रही है, और जलवायु और भूमि प्रदूषित हो रही है, जो कि बहुत बड़ा जो है विनाशकारी है। आप ये सोचते होंगे कि सरकार इस पर ऑप्शन क्यों नहीं लेती है, सरकार जो है इसका सुध क्यों नहीं लेती है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि सरकार इसलिए इस पर एक्शन नहीं लेती है बड़े बड़े फैक्ट्रियों पर, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो इलेक्शन में जो ये पैसे चाहिए होता है इलेक्शन लड़ने के लिए, ये बड़े बड़े कंपनियां ही इनको देती है। इसलिए ऐसी सी बात जानने के पश्चात भी जो है इस पर ब्रेक नहीं लगती है। तो ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति है कि अपना सिक्का जमाए रखने के लिए ये जो है जनजीवन को नष्ट कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो भी रहा है तो सिर्फ जीव जंतु का ही हो रहा है। मनुष्य तो अपने आप को सुपीरियर समझता है, लेकिन जीव जंतु बेचारे क्या करें। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन जीव जंतु पागल हो गए उस दिन इंसान का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस प्रदूषण के कारण उनके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, इसका प्रभाव तो था ही था, अब हमारे देश में 5G भी आया है, और इसका भी बहुत दुष्परिणाम है जो आने वाला समय में आप स्वयं ही देख सकती हो। ये सभी परिस्थितियाँ तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर सिर्फ हम इंसान के स्वास्थ्य पर खतरा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पर्यावरण में मौजूद उन सभी जीवों का बात नहीं कर रहे हैं जो इस प्रदूषणों के कारण उनका क्या अस्तित्व रहेगी या न रहेगी तो समय ही बताएगा, लेकिन इस प्रदूषण से उनका जीवन तहस नहस हो रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्थिक विकास। यह एक तथ्य है कि आर्थिक विकास का प्रतिरूप भी पर्यावरण समस्याओं को पैदा कर रही है। आर्थिक विकास की गति संसाधनों की भारी दबाव डाल रही है, और आज की अर्थव्यवस्था उपभोगवादी बन गई है, जिसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और सेलिंग की जन्म देती है। कहते देखा जाए तो संसाधनों का विवेकहीन उपयोग उनका जो व्यय पर्यावरण को अनवैध के लिए उत्तरदायी है। यानी देखा जाए तो आर्थिक विकास ने भी पर्यावरण को बहुत ही तहस नहस कर दिया है। बेशकली हम जो है आर्थिक विकास के रास्ते पे आगे बढ़े हैं, लेकिन हमने जो है पर्यावरण को थोड़ा भी इस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण पर्यावरण जो है दिन प्रतिदिन नष्ट होता चला जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारे समक्ष समस्या पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं इंसानों की गतिविधियाँ ही हैं। कहते हैं इंसान गतिविधि तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा हाथ सरकार का है, क्योंकि सरकार सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है, और सरकार जो रूल रेगुलेशन बनाएगी प्रत्येक व्यक्ति को उसको मानना पड़ेगा। अगर सरकार इस पर अच्छे से ध्यान दे, प्रकृति के ऊपर अच्छे से ध्यान दे, और कुछ सख्त रूल रेगुलेशन के साथ कड़ाई से इसको पालन करने के लिए मजबूर किया जाए लोगों को, तो जर्नल सी बात है लोग जो है पर्यावरण दोहन नहीं करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ एक बात को
कि सरकार ये कभी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा मकसद होता है अपना सीट बनाए रखना, और सीट बनाने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति को ही ये जरिया बनाती है, और इनसे जो है ये दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, इसीलिए जो है सदैव ये इन्हीं का ही गुणगान गाते रहते हैं। और ये बड़े बड़े उद्योगपति सब जो होते हैं पर्यावरण नष्ट करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कहते हैं गरीब लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़े लोग जो होते हैं उनको जितना हो सके पैसे चाह रहा होता है, चाहे वो देश को कहते हैं बर्बाद ही क्यों ना करना पड़ जाए। आप देखिए, इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भारत के लिए 5G सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लाया गया। किस लालच में लाया गया? इससे सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? क्या आप 4G से संतुष्ट नहीं थे? क्या आपको ज़रूरी था 4G 5G का? तो सोचिए, विचार कीजिए। आपको पता ही होगा कि 4G का विनाश हमने पहले ही देख चुका है। अगर आप नेट पर सर्च कीजिए तो 4G के बारे में बहुत ही दुखदायक परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे 5G आ गया है वो और भी नष्ट कर रहा है। तो कहते हैं लोगों को सब पता है, इवन कि आपको भी पता है इस बात का कि आगे क्या क्या हो सकता है और क्या मुसीबत पैदा होगी, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद कर रखे होते हैं। लेकिन कहीं शतुरमुर्ग की तरह ये ना हो कि हम जो है दुश्मन के डर से अपने गर्दन जो है रेत में धंसा ले, लेकिन ये नहीं सोचिए कि दुश्मन आपको अटैक नहीं करेगा, तो इसका बुरा प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सही रूल रेगुलेशन लगाना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।